everyone, welcome back. Now friends, in this video we will see some more numericals based on this rectangular waveguide. Already in the last video we have seen one numerical. I have told you that if you remember the formulas based on this rectangular waveguide, it will be very easy for you to solve the numericals based on this rectangular waveguide. The same is the numerical here again. So let us see the second numerical of this rectangular waveguide. Read the numerical. See what is given here. A rectangular waveguide of cross-sectional area or cross-sectional dimensions of 2.5 cross 1 centimeter is used to transmit a signal of 9 gigahertz. यानी rectangular waveguide का आपको dimension आपको दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 2.5 क्रॉस 1. इसका मतलब यहाँ पे दो वैल्यूज दिया हुआ है. एक है आपका 2.5 सेंटीमीटर, राइट, एंड सेकंड है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, राइट, क्रॉस 1 सेंटीमीटर. तो ऑलरेडी मैंने बताया कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड के दो डायमेंशंस, एक तो रहता है ब्रेड्थ और दूसरा रहता है हमारे पास विड्थ, राइट. उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए और बी से, राइट. ऑलरेडी मैंने बताया कि जो लार्जर डायमेंशन है, राइट, दे इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए ब्रेड्थ, एंड जो smaller dimension रहता है that is nothing but the width and that is represented as b, right. दोनों वैल्यूज दिया रहेगा या दो में से एटलीस्ट एक ही वैल्यू आपको दिया रहेगा, राइट. फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 9 गीगाहर्ट्ज इज गिवन टू यू. तो सभी का पहले गिवन डेटा हम कलेक्ट कर रहे थे. गिवन डेटा में हमने देखा हुआ है ए की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर, राइट, और बी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर. इट इज नॉट डायरेक्टली स्पेसिफाइड एज 2.5 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ ए and 1 centimeter is the value of B, but from the dimension we have to assume that the bigger value is A and the smaller value is B, जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है. फ्रीक्वेंसी आपको दिया था 9 गीगाहर्ट्ज, जो भी मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया है, और एक मोड दिया. मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपको मोड देना जरूरी है. अगर मोड नहीं देते तो आपको TE10 डोमिनेंट मोड आपको अज्यूम करना है. ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, राइट. दिस इज नथिंग बट योर डोमिनेंट मोड. तो अगर मोड नहीं दिया है तो आपको मोड अज्यूम करना है डोमिनेंट मोड, राइट. तो हियर इन दिस केस इट इज गिवन हियर डिटरमाइन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर डोमिनेंट मोड बोला है ऑलरेडी. डोमिनेंट मोड रहता है हमारे पास TE10 ऑलवेज, ध्यान रखना है. फाइंड द फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द डोमिनेंट मोड, आल्सो फाइंड द गाइड वेवलेंथ. तो जो पैरामीटर्स बोला है वो पैरामीटर्स हम निकालेंगे. So as the frequency is given, सबसे पहला टास्क है हमारे पास कि फ्री स्पेस वेवलेंथ निकाल लेना है. That means you have to calculate the value of lambda. तो पहले हम लैम्बडा की वैल्यू निकालेंगे और बाकी फिर 1 by 1 वैल्यूज हम निकालते रहेंगे. Just you have to consider the formula for the particular parameter. You put the value and you are going to get the answers, right? तो सबसे पहले आपको पता है कि लैम्बडा कैसे निकालते हैं. लैम्बडा is always c divided by f, right? C is nothing but the velocity of light, right? And f is nothing but the frequency of the wave. तो f की वैल्यू आपको दिया हुआ है 9 गीगाहर्ट्ज. तो c is 3 into 10 to the power 8. f आपको दिया हुआ है 9 गीगाहर्ट्ज. तो ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो आपको लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी 0.033 मीटर. This lambda is here. You can also consider this is lambda 0, and this is also called the free space wavelength, right? Free space wavelength. So free space wavelength is always c divided by f if the free medium is given to you, right? Once you will get the value of lambda, you can calculate the cutoff frequency. Cutoff frequency का formula already मैंने last numerical में भी बताया था आपको. fc is equals to c divided by 2 square root of m divided by a whole square plus n divided by b whole square. And you have to remember that always जो cutoff frequency रहती है for any rectangular waveguide, it is a function of the dimensions a and b. Also, the cutoff frequency depends on the different modes. Because here expression में अगर आप देखते हो तो m और n आया हुआ है, और m और n किसके ऊपर डिपेंड करता है? It depends on the mode. Which mode is given? For example, TE10 अगर दिया हुआ है तो m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 0. अगर TE01 अगर आपको दिया रहेगा तो m की वैल्यू 0 और n की वैल्यू आपका 1, राइट. अगर TE11 अगर दिया हुआ है तो m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1. तो अगर आप अलग अलग मोड्स के लिए m और n की वैल्यू अगर आप अलग अलग पुट करते हो तो सभी के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपकी अलग अलग आएगी. बट फॉर आवर न्यूमेरिकल द डोमिनेंट मोड इज गिवन टू यू एंड डोमिनेंट मोड इज TE10. So we will put the value of m as 1
and n as 0, right? So here c की वैल्यू मैंने पुट कर दिया 3 into 10 to the power 8 divided by 2 square root of m is 1 और a is 0.025 plus n is 0 और b है हमारे पास 0.0127 और उसका स्क्वायर। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे पूरा टर्म तो यू विल फाइंड दैट द फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 6 into 10 to the power 9. 10 to the power 9 means giga, right? So I can write down here fc is equal to 6 gigahertz. So in this way, by simply putting the value in the formulas of the cutoff frequency, you can easily calculate this value. Once you calculate the cutoff frequency, you can calculate the cutoff wavelength. Cutoff wavelength, wavelength is given by c divided by f. This is the general formula. तो कट ऑफ वेवलेंथ अगर चाहिए तो आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रखना पड़ेगा। सी जैसे कि फ्री मीडियम के लिए या एयर मीडियम के लिए सी उतना ही रखना है, आपको ध्यान रखना है। तो सी डिवाइडेड बाय एफ सी दैट विल गिव यू लैम्बडा सी। तो सी की वैल्यू पुट कर देना है। एफ सी की वैल्यू अभी हमने निकाला हुआ है 6 गीगाहर्ट्ज यानी 6 into 10 to the power 9 और ये वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो आपको लैम्बडा सी मिलेगा 0.05 meters and 0.05 meters can be expressed in terms of centimeter as 5 centimeter. So once you calculate the value of lambda c, now already you have calculated the value of lambda, you have calculated the value of lambda c, right? So you can easily calculate lambda g. Lambda g कितना रहता है हमारे पास? Lambda divided by under root of 1 minus lambda divided by lambda c whole square. तो lambda g के लिए ये फॉर्मूला है। फेज वेलोसिटी अगर निकालना तो आपको पता है फेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू c divided by under root of 1 minus fc divided by f या lambda divided by lambda c whole square। तो आप फॉर्मूलेज अलग अलग फॉर्मूलेज आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको पता है Vp into Vg is equals to c square. तो once you will calculate the value of Vp, you can also calculate Vg as c square divided by Vp. So these are some of the simple formulas, right? इसमें सिंपली आपको वैल्यूज पुट कर देना है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम क्या करते हैं, पहले Vp के लैम्बडा g निकाल लेते हैं। देखिए लैम्बडा g is equals to lambda divided by 1 minus lambda divided by lambda c whole square. Put the value of lambda we have calculated. Lambda और lambda c की वैल्यू पुट कर दीजिए। You will find that lambda g is coming to be 0.1597 meter. That can be expressed in centimeter as 15.95 centimeter. Right? Lambda g हो गया। Vp का एक्सप्रेशन अभी मैंने बताया था c divided by under root of 1 minus lambda divided by lambda c whole square. So therefore, simply put the values of c, lambda and lambda c that we have already calculated. So you will find that Vp is 3.99 into 10 to the power 8. लास्ट न्यूमेरिकल में भी मैंने बताया था आपको कि Vp की वैल्यू हमेशा 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड से ऊपर ही आना चाहिए। अगर 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड से अगर वैल्यू कम आती है Vp की तो समझ जाना कि आपका न्यूमेरिकल रॉन्ग है। लेकिन कौन से केस में, अगर मीडियम एयर मीडियम या फ्री स्पेस अगर है उसी के लिए अगर मीडियम अगर चेंज होता है तो ये Vp की वैल्यू आपकी 3 into 10 to the power 8 से कम आ सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस द फ्री मीडियम विल बी गिवन टू यू और एयर मीडियम विल बी गिवन टू यू एंड फॉर दैट ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर द फेज वेलोसिटी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, जो वैल्यू हमारे पास आई हुई है, एंड दिस कैन बी योर करेक्ट आंसर। वंस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Vp यू कैन कैलकुलेट द Vg नाउ, क्योंकि आपको पता है दो रिलेशनशिप दैट इज Vp into Vg that is equals to c square. Now you have got the value of Vp, you know the value of c that is the velocity of light, you can easily calculate Vg जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में किया हुआ। You can see here Vp times Vg equals to c square, so therefore Vg is equals to c square divided by Vp. तो c is 3 into 10 to the power 8 उसका स्क्वायर 3.9 into 10 to the power 8 कैलकुलेट अगर आप करते हो तो Vg is 2.255 into 10 to the power 8। तो अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि Vg की वैल्यू आपका 3 into 10 to the power 8 से कम चाहिए, ध्यान में रखना है। और Vp की वैल्यू इट शुड बी ग्रेटर देन 3 into 10 to the power 8। ये आपको ध्यान में रखना है क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। अगर ये ध्यान में रहता है तो यू कैन इजीली टेली whether your answers that you have calculated is correct or not, right? So in this way we have calculated the wavelength first, cutoff frequency, cutoff wavelength, guide wavelength, phase velocity and group velocity. So we have calculated all the parameters. तो होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में होगा, आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिंपली कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। डायमेंशंस दिया है तो डायमेंशंस, ग्रेटर डायमेंशन इज ऑलवेज वैल्यू ऑफ a, smaller dimension is always value of b,
दूसरा फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो उसके ऊपर से पहले वेवलेंथ निकाल लेना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला लैम्बडा बाय एफ लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाय एफ। उसके बाद में मोड कौन सा दिया है वो चेक कर लेना है। मोड के हिसाब से आपको एम और एन की वैल्यू मिल जाएगी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में आप रख सकते हो और अलग अलग मोड के लिए अलग अलग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिलेगी। तो go on calculating, you will find that it is very easy to calculate the answers. So I hope it's clear to you. So that's all for this video. Thank you very much.